ओके जी, इज इट क्लियर गाइस? बेटा नजर आ रहा है? जी सर। ओके ओके जी. So today in this lesson we'll be studying about the bearings. So first of all we need to recall that topic, that what bearing is. So there are three important points to memorize. So first of all, bearing is an angle slash rotation from north. Second point is it is always in three digits, and it is always from clockwise. It is always from north. ये थोड़ा सा change कर देंगे. It is always from north and clockwise rotation. So we know already about what is clockwise rotation. So first of all, we need to understand that what a bearing is. Type 1 questions in bearing. So the first type is there would be 2 points given to you in an exam. For example, this is point A, and for example, this is point B, and they'll connect the points like that. And they say that, and there will be a line north on A, for example, like that. So there will be north and लिखा होगा इसके ऊपर, ठीक है. They say that scale is that 1 centimeter is equals to 5 kilometers. Part A, calculate actual distance. Calculate actual distance. So first of all, you have to pick the ruler and you have to measure the length, that how much length is this. So I'll adjust my ruler. Your ruler, it has some values, so you have to count it very carefully. I can see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, approximately 8. So it is 8 centimeter. So 1 centimeter is equals to 5. So 8 centimeter multiplied by 5 eighths. So 5 eighths are 40 kilometer is the distance in actual. Okay. बिकॉज मैप्स जो होते हैं दे आर मेड ऑन स्केल्स, तो स्केल के ऊपर बनाया जाता है, और अगर स्केल ना हो तो फिर आपको प्रॉब्लम होती है. गेट इट? And then they say that type B, they'll say that measure bearing, measure bearing of B from A. So read the statement. Measure bearing of B from A. So it means that from A you are supposed to draw north and it is already drawn. So it means that you are standing at point A and you are watching this point. You are watching this point and you want to see B. So it means that you have to move clockwise. So clockwise like this. So in order to measure this angle, you can use the protractor, and we can see that this given angle must be, it's an obtuse angle because it is greater than 90. Because I told you already in the previous lessons that this is 90 degrees angle. Two straight perpendicular lines, they make 90 degrees angle. And if a line is making like this, so it means that this is obtuse angle. And if it is less than 90, it is an acute. And if it is greater than 180 and less than 360, so this is what? This is reflex angle. So for example, we are supposed to measure this angle. So I know that this angle would be 90. Let me rotate my ruler because you can use the protractor there very efficiently. So I will turn the ruler like this to in order to check. So 90 plus 22 is what?
So according to the ruler, I'm just calculating. You can use the protractor in a very efficient way. So 90 plus 22 is, according to the ruler, 90 plus 22 is 112 degrees. So 112 degrees. So it means that bearing is a 3 digit. So we got the answer. Part C will be find the bearing of A from B. Now, please read the statement again. Find the bearing of B. Find the bearing of A from B. So it means that we have to draw north on B. We have to draw north on B like this. Marok, agree? This is my north, and now my eyesight is here. And in bearing concept, I'm allowed to move only clockwise. I want to see person standing at position A, so I have to move the clockwise rotation like this. Get it? Now I need to find out this angle. Now according to the question, it is find, not measure. So it means that we can do something here. So for example, if this angle is 112 as we calculated now, so this angle would be what? It would be 180 minus 112 because these are the co-interior angles of a parallel line. So 180 minus 112. So 180 minus 112 is 68, right? So that must be 68. So now the bearing would be, find the bearing of A from B. So it would be 360 minus 68. So 360 degree minus 68. So answer is what? 292 degree. Get it beta? समझ आ गई आप सबको? Any questions? Marok, any question? But if you have any sort of question, you can ask me. सर ये 68 किस जगह से आ गया सर? बेटा ये को इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन होते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस ऐसे हैं, ये दो लाइनें हैं, ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इनके दरमियान में जो एंगल होंगे ए और बी, सो ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये हम लोग पढ़ चुके हैं यस सर, स्टडिंग यस द सर, एंगल्स. ठीक है. सो यस सर. ये वहां पर ऐसी ही चीज बनी है. ये समझ आ गई? जी सर. ओके. फॉर एग्जांपल लेट मी क्रिएट अ क्वेश्चन हियर. मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे बना रहा हूँ. क्वेश्चन 2. For example, let me take 3 points now. This is point A and this is point B and this is point C. So let me draw the norths first. मैं north भी बना देता हूँ straight away. 3 points हैं. And for example, these 3 points are 3 burger shops. For example, so it helps in location. Okay, coordinates find out करने में हमें बहुत मदद मिलती है और bearing की वजह से ही we used to study the maps. Okay, so now for example, if the given question is something like that, that bearing of B from A is 127 degree. Find the bearing of A from B. In order to find out the bearing, first of all you need to connect the points. आपको points को connect करने हैं. अभी A और B की बात हो रही है, so connect it like that. You can see that the bearing of B from A is given, so it means that we have to turn 127 degrees to see B. Agree? So what that angle would be? G or Bob? What that angle would be, beta? G? Hello? सर 127 माइनस 80 करेंगे ना, माइनस क्या कहते हैं 180 करेंगे ना जी. 180 माइनस 127 बोले बेटा, उल्टा नहीं बोले. ठीक है. ओके सर. So 180 minus 127 is equals to 53. Right or wrong? So sir. this angle is 53 degrees. Now read the question. Find the bearing of A from B.
तो बी के ऊपर आप अपनी आंख बना लो। अब आपने ए को देखना है, क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते, एंटी क्लॉक ही घूम सकते हैं। सो वी हैव टू टर्न क्लॉकवाइज लाइक दैट, गेट इट? सो ये क्या होगा भाई? 53 minus 360. व्हाट? 53 minus 360. बेटा उल्टा बोलते हैं ना आप, 360 माइनस 360 53 minus बोलेंगे। 50. 53. ठीक है, 360 माइनस 53 इज व्हाट? 307 डिग्रीज, गेट इट? Yes, sir. इजी? Yes, sir. Okay. Now they can also say that, for example, let me connect the point C with the B. So point C को B के साथ connect कर देते हैं like that, और A को C के साथ connect कर देते हैं. Okay. Now they can say that the distance between A to B is given, for example, and they can also tell you that calculate part B में ये कह सकते हैं आपको कि calculate bearing of A from C. So इसका मतलब है we need this angle, right Barbab? Because Yes, sir. A is on this line, so we need this angle. Get it? और क्वेश्चन में इससे रिलेटेड जो है ना इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन होती है। आगे ये क्वेश्चन मैं प्रोसीड करूंगा, पहले मैं वर्कशीट पे जा रहा हूँ, सो काइंडली पे अटेंशन। ओके जी, they say that this is a map of an island, Leek, Castletown, Bilton, Fox Valley, and Donhampton, and scale is 1 centimeter. It represents what? 1 centimeter represent 10 miles. ठीक है? So 1 centimeter represent 10 miles. So now in this question, we need to see that a helicopter flies in a straight line from Leek to Donhampton. So Leek to Donhampton. So join first. फर्स्ट लीग को डॉनहैम्पटन से ज्वाइन कर दें। ओके, रूलर आपने सही रखना है, क्रॉस टू क्रॉस जाना है। इस तरह का क्वेश्चन कैम्ब्रिज में भी आ सकता है आपकी तरफ। ओके डन। नाउ दे से दैट हाउ फॉर डज द हेलीकॉप्टर फ्लाई। सो लेट्स कैलकुलेट। आपने पहले रूलर पे नापना है, रूलर को एडजस्ट करें। लेट मी काउंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13.1, 13.2, 13.3. According to my scale, it is 13.3. So 13.3 centimeters. And now 1 centimeter is equals to 10 miles. So time 10. So it is 133 miles. Get it? You can get different answer if you have different ruler. लेकिन जो मेरे पास एक्यूरेसी है वो इतनी ही आ रही है, तो लेकिन इतना भी ऊपर नीचे नहीं होगा। 13.4 हो सकता है, 13.2 हो सकता है। Get it? Okay. Write down the bearing of Donhampton from Leek. So Donhampton को देखना है Leek से, तो Leek पे you have to draw north like that. Done. अब this is your eyesight. You are watching this area. You want to see Donhampton, so you need this angle, right above. So this is what clockwise angle. So what that angle must be? It is acute obtuse reflex. ये कितना होगा जी अरबाब? बेटा ये एंगल कितना होगा? सर ये अगर होगा आपको ये डाउट है कि 90 होगा तो 90 ऐसा होता 90 है। तो नहीं है सर, 90 तो नहीं है। ओके, It's more अगर ये than लेस देन 90. 90 होगा तो ये एक्यूट होता है, क्यों से सर more than 90? या इट्स मोर देन 90। सो मोर देन 90 इज, बेटा देखो बार बार ये चीज़ें मैं रिवाइज करा रहा हूँ, तो प्लीज़ सीरियस होकर इन चीज़ों को सीखे। इट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, एज आई कैन सी दैट इट इज़ ग्रेटर देन 90। तो मैं विद द हेल्प ऑफ रूलर कैसे फाइंड आउट कर रहा हूँ, ज़रा आप लोग और करते जाएं। जैसे ही मैंने रूलर स्ट्रेट किया, ये एंगल 0 हो गया। मुझे पता है कि स्ट्रेट रूलर 90 पे है, एग्री और नॉट? तो मैं रूलर स्ट्रेट कर देता हूँ, मतलब ये 90 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 हो गया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ से नीचे रोटेट करूंगा और वो एंगल हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है? तो फिर उसको हम ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ये। आपने ये पेपर में करना है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर, जिसको डी बोलते हैं, ठीक है? सो ये मुझे मिल गया 40। तो 90 प्लस 40 इज व्हाट? इट्स 130 डिग्रीज, राइट? So the bearing,
Write down the bearing for Dunham. It is 130 degrees. इसका मतलब है we need to turn 130 degrees clockwise in order to see Dunhampton from the leak. Agree? Now, Shafat, the diagram shows the position of two houses A and B on a map. Measure the bearing of B from A. Measure the bearing of B from A. तो मतलब A के ऊपर आंख बनाएं अपनी समझने के लिए, यस सर। और आपने अब B को देखना है तो क्लॉकवाइज हमें इतना घूमना है, राइट? अभी ये आप बताएं शफात, क्या ये 90 से बड़ा है कि 90 से छोटा है या 180 से बड़ा है? If this angle is greater than 90, less than 90, equals to 90 or greater than सर यू 90 सर 90, क्या 90 से कम है कि ज्यादा? ज्यादा है सर। बेटा ज्यादा नहीं है ना बेटा, आप जरा देखें, मैं अभी बताया दिस इज 90 डिग्रीज एंगल, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, इट्स अ राइट एंगल। मारो क्या मसला है बेटा? दिस एंगल इज एक्यूट, दिस एंगल इज acute, less than 90, and this angle is greater than 90। तो आपको नजर आ रहा है कि लाइन खुली नहीं हुई, 90 से ज्यादा नहीं है, so this is acute angle। यस सर। तो इसको 90 मेजर से करने कम है सर। जी, तो इसको मेजर करने के लिए मैं तो रूलर से मेजर करूंगा, आपने प्रोटेक्टर से करना है। ओके जी, अभी आपको आवाज क्लियर आ रही है मारूफ बेटा? रूलर को मैं रोटेट कर रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कितना एंगल है। सो जितना मेरे पास रह जाएगा मैं 90 से माइनस करूंगा, तो मेरे पास रह रहा है 19, तो 90 माइनस 90 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ रहा है 71 डिग्रीज। आप लोग प्रोटेक्टर से कर सकते हैं इसको, ठीक है? सो मेजर द बेयरिंग ऑफ बी। अभी मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर कि बेयरिंग इज ऑलवेज 3 डिजिट, तो आपने आंसर लाइन पे 71 नहीं लिखना, ठीक है? 3 डिजिट पूरे करने हैं, लेकिन 710 नहीं बना सकते इसको, तो 071 लिखेंगे हम लोग। गेट? समझ आ गई बेटा? इज इट क्लियर मारो बेटा? इफ इट्स क्लियर सो जस्ट टाइप क्लियर, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है चैट बॉक्स भी। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अनदर हाउस सी इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 170 फ्रॉम बी। अच्छा जी, अरबाब ये पॉइंट सीखने गए? अच्छा, अनदर हाउस सी इज ऑन अ बेयरिंग ऑफ 170 फ्रॉम बी, मतलब बी से 170 घूमेंगे तो हमें हाउस सी नजर आने वाला है। समझ आ गई? जी सर। तो अभी बी से हम लोग घूमते हैं 170, सो ये हो गया जी 90 डिग्रीज। तो अरबाब तुम्हें पता है ना कि ये स्ट्रेट लाइन 180 बनाएगी, यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब है कि ये एंगल इससे थोड़ा सा कम होगा, एग्री और नॉट? जी सर। तो वी एज्यूम के दैट, हम ये एज्यूम करते हैं कि यहाँ से एक 10 डिग्री कम में रख लेता हूँ, ये काम अपने प्रोटेक्टर पे करना है। 170 कर दो। मैंने ये 170 कर दिया, ठीक है? एक 10 डिग्री थोड़ा सा कम कर दिया मैंने, ठीक है? आई से दैट दिस एंगल इज 170 डिग्रीज। सो ये रेड लाइन को मैं जरा इरेज कर देता हूँ, ठीक है? ओके डन, ये हो गया जी 170। अब क्या कह रहे हैं जरा, ये कहते हैं कि ऑन द मैप सी इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी, सी इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम बी। तो आपने रूलर रखना है लाइक दैट, 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है सबसे पहले। सो मैं यहां से लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5, पूरी हो गई। जैसे ही आपने 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई, आपने कंपास को रखना है इस जगह पर, और कंपास को इस लाइन जितना ओपन करना है पेंसिल लगाने के बाद। समझ आ गई? जी सर। अब आपने रखना है वो तो सर पॉइंट डायमीटर्स बनाने हैं ना, जी, काइंड ऑफ डायमीटर्स बनाने हैं ना, आई मीन डायमीटर्स नहीं बनाते डायमीटर तो नहीं। क्या करते थे इसको? आपने जैसे ही कंपास खोल ली ना, ठीक है, हम्म, आपने कंपास को रख देना है बी के ऊपर, और 5 सेंटीमीटर दूर एक आर्क लगा देना है लाइक दैट। आउटलाइन, सॉरी गेट? आउटलाइन बनाने हैं ना। आपने एक आर्क लगा दिया। अब ये जो आर्क आपने लगाया है मारो, दिस गिवन आर्क इज, दिस पॉइंट इज योर पॉइंट सी। तो आपने क्या करना है, ए टू सी को ज्वाइन कर लेना है लाइक दैट। समझ आ गई बेटा मारो? इज इट क्लियर? ये बेरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, एक दिन जो है वो मैं पास पेपर में कैमरा सेटिंग्स के साथ करूंगा, जहां पे मैं कंपास को खुद यूज करूंगा, ठीक है? तो अभी मैं खाली समझा रहा हूं, तो पहले ये समझ लें, फिर इंशाल्लाह जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसको हम इस तरीके से भी करेंगे, ठीक है? ओके अरबाब, read the question and tell me what to do. The diagram shows position of a board B and dock D. The scale diagram is 1 centimeter represents
2 किलोमीटर की, 1 सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। वर्क आउट द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन द डॉक एंड द बोट। क्या करूं अरबाब? सर आप पहले तो 2 सेंटीमीटर तक वो खोले ना, क्या खोलूं कंपास खोल लेंगे। बेटा? पहले आप ये पढ़ें जरा कि लिखा क्या हुआ है, रीड करें, मुझे आवाज आनी चाहिए। The scale of the diagram is 1 centimeter, it represents 2 kilometers. जितनी Work इतनी out. तेजी से आप वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे आपको कभी समझ नहीं आएगी। काम डाउन, रिलैक्स एंड देन रीड। The scale of the diagram is 1 centimeter, represents 2 kilometers. इसका मतलब है ये कि ये जो लाइन इन्होंने बनाई है ना, इसका Hmm. स्केल इन्होंने ये सेट किया है कि हर सेंटीमीटर 2 किलोमीटर के बराबर है। दैट एवरी सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। ओके, Yes, sir. नाउ ये पेपर पे बना हुआ है। ये हो सकता है कि डी जो है ये आपका स्कूल हो, बी आपका घर हो। ओके Hmm. ओके, एक्चुअल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू? No, sir. जी, व्हाट वी हैव टू डू? So bearing find कर दो। नहीं, बेरिंग का तो उसने मांगा ही नहीं ना कुछ। मारो, व्हाट वी हैव टू डू बेटा? टर्न ऑन द माइक एंड टेल मी। So D और B दोनों डॉक एंड बोट है ना, जी बिल्कुल है। तो सर वो चेक करिए कितना डिस्टेंस है ना। हाँ, तो डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे हम लोग यहाँ पर? तो आप चेक करिए कितना सेंटीमीटर बनता है, उसको 2 पे कर हाँ, दो। यही मैं पूछना चाहता था कि आप रूलर रख के बताएं कि कितना सेंटीमीटर है ये। सो 1 2 3 4 5 6 7 7.5 7.6 7.7 अकॉर्डिंग तो टू माय 7 स्केल ऑन द 14, स्क्रीन। तो 14.14। तो आपने करना है 7 पॉइंट क्या आया था? 7 पॉइंट 7 मेरे ख्याल से या 7.7 मल्टीप्लाई विद 2, सो इट इज 14.14। नो। नहीं सॉरी, देखें, 8 पॉइंट वो बन जाएगा। calm down, calm down. 7 plus 7 is 14 and point 7.7 is 1.4, so it is 8 15.4. पॉइंट। Okay, so 15.4 kilometers is the actual distance between a dock and a boat. Maro, do you understand? Shafar, do you understand? Yes, as sir. Hoor as Hoor and Barira, they both are absent, so that is the reason I'm recording the class. Okay, now they say the measure the bearing of B from D. तो एक बात मुझे बताएं, measure the bearing of B from the D, तो कहाँ से देखें जी? सर ये 7.7 पर समझ नहीं आ गया सर। मैं बेटा ये रूलर से मेजर किया हमने। यस सर। ये लाइन हमने रूलर से मेजर किया कि लाइन कितनी है, तो ये 7.7 सेंटीमीटर है। सर हाँ जी, तो अरबाब, मेजर द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम द डॉग डी। तो हमें कहाँ से क्लॉकवाइज घूमना है? 360, आई मीन बी टू कहाँ डी, से? बी टू डी होगा ना। फिर आप देखें बी टू डी बोल रहे हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? जरा पढ़ो ये जो मैंने अंडरलाइन किया है। मेरे द बेइंग फ्रॉम बी टू डी, सॉरी सर, तो फिर बी टू ऊपर डी, से नीचे, फ्रॉम द डॉग डी। आपने टू नहीं बोलना बीच में। तो ओके सर। इसका मतलब है फ्रॉम के बाद लिखा है डी, तो डी से क्लॉकवाइज घूमें और बी को हिट करें। So this is the angle we need. Get it? यस सर। So in order, we can see that this given angle is an obtuse angle. So let's find out how much obtuse is this. So we know that this angle is 90, right Shafad? हमें पता है कि ये एंगल 90 है। यस सर 90 से ज्यादा है सर। हाँ जी, तो अभी मैं रूलर को चेंज करूंगा, आप प्रोटेक्टर पे देखिएगा, ठीक है? तो मैं रूलर को थोड़ा टिल्ट करूंगा एंड देन आई ऐड द वैल्यू। तो मेरे पास आ रही है ये वैल्यू 23। सो 90 plus 23 is what? तो It's 113 103। सर। 113 degree centigrade. Okay. So Ayach is 8 kilometer from the B on a bearing of 50. So bearing of 50 देखें B से, so bearing of 50 होगा approximately clockwise घूमना है, so ये एंगल होता है 90. Yes or no? यस सर। तो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो मतलब यहाँ से यहाँ तक ही आएंगे तो तकरीबन हो सकता है 50 डिग्रीज हमारे पास एंगल आ जाए। यस और नो? सो फॉर एग्जांपल दिस एंगल इज 50, ये आपने प्रोटेक्टर से देखना है। अच्छा बेटा, एंड दे से दैट 8 kilometers from the board B,
सो पहले 8 किलोमीटर की लाइन लगानी जरूरी है, तो 2 किलोमीटर 8 के बराबर है, तो इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। यस और नो अरबाब? जब 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा दी, अब आप कंपास को इस कोने पे रखें, ओपन द कंपास, कंपास को इतना ओपन करें कि इस कोने को टच करे कंपास। अब पॉइंट बी पर रखकर, बी पे आपने रखा और आपने एक आर्क लगा दिया, लाइक फॉर एग्जांपल ये आर्क यहां पर आ गया, सो दिस पॉइंट इज योर वाई पॉइंट। ओके, सो ओके दिस सर। पॉइंट इज योर वाई पॉइंट। तो ये आपकी वो याच की पोजीशन है, तो ये आपने डायग्राम के ऊपर लेबल करनी होती है। समझ आ गई बेटा? ओके, अब अरबाब आप बताएं मुझे। कहता है वर्क आउट द बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, तो क्या आंसर होगा बेटा? So 360 minus 50. बेटा जरा रिलैक्स होके ए से क्लॉकवाइज घूमो और बी को हिट करो बस। अच्छा सर, क्या कहते हैं 90, तो 180 minus 50 होगा ना सर? क्या होगा? 180 minus 50. देखें वन, ये देखें जरा, ये मैं ए से क्लॉकवाइज घूमना शुरू किया, Mm-hmm. आई एम गोना हिट बी, डन। Yes sir. हाउ So मच find दैट एंगल इज? 50 sir. बेटा ये 50 है, इतना बड़ा एंगल 50 है। लिखा तो सर आप फाइंड करेंगे। 180 है, स्ट्रेट हाँ लाइन जी, 180 हो गया, वो उधर उधर यस जितना है वो प्लस कर दे। यस, सो 180 प्लस 50 50. इज द आंसर, सो दैट इज 230। समझ आ गई बेटा? Yes sir. इजी। मारो, द क्वेश्चन इज फ्रॉम यू, गेट रेडी। द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी इज 070 एज मेंशन्ड। नजर आ रहा है कि पी से क्यू की तरफ देखेंगे तो 70 डिग्री आता है। तो पहले मारूफ मुझे ये बताएं कि ये एंगल कितना होता है, व्हाट दैट एंगल इज, हाउ मच। सो आप लिखें जी, टाइप करें, आई कैन सी द चैट, व्हाट दैट एंगल वुड बी, जस्ट डिजिट्स लिखें कि ये एंगल क्या होगा, ये जो ग्रीन मैंने मेंशन किया है। शफात ये एंगल कितना होगा बेटा? 90 से ज्यादा सर। बेटा ये ग्रीन वाला एंगल कितना होगा, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ। 90 से ज्यादा होगा सर, मैं तो बेटा 90 से तो ज्यादा है, फॉर श्योर सी बात है, लेकिन Yes, ये sir. एंगल क्या होगा अरबाब? 110 तक हो जो होगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, जबरदस्त। इट इज 110 को इंटीरियर एंगल है, ठीक है, बिकॉज 70 प्लस 110 180 आना चाहिए। सो दे से दैट कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू, सो क्यू से जरा घूमते हैं, तो शफाहत ये एंगल कितना होगा जो मैंने निशान लगाया है? 110 प्लस 70 और 180 नो सर। नो 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 नो, ये रेड वाला देखें जरा, रेड वाला, ये जो मैं बना रहा हूँ, Yes, आप sir. यहां से घूमे यहां तक आ गए, तो ये एंगल कितना होगा? एंगल एट अ पॉइंट क्या होता है? 180 सर। एक पॉइंट के ऊपर एंगल कितना होता है बेटा? 360 सर। वेरी गुड, तो 360 में से 110 निकाल दें तो ये नीचे वाला आ जाएगा कि नहीं? यस सर। सो 250 सर। 360 माइनस 110 डिग्री इज इक्वल टू 250। 250 डिग्री। अरबाब समझ आइए बेटा, यस सर, समझ गए। अरबाब समझ आइए जी सर। बेटा। यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन, स्पेशली पेपर 2, ठीक है। बेरिंग वाले क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, एंड देन यू हैव टू टेल मी कि सर मुझे ये समझ आ रहा था, ये नहीं आ रहा था। ये वाला क्वेश्चन बताएं जरा अरबाब, पढ़ें जी अरबाब। The bearing from person C from person A is 062. ओके, The 062। bearing 62 degrees. The bearing of a person C from person B is 275 degrees. ओके जी, तो पहले बेरिंग ऑफ पर्सन सी लगाते हैं, ए से 62 डिग्री, एग्री? तो 62 डिग्री समथिंग इधर होगा, राइट? Yes sir. यस और नो? जी सर। थोड़ा ओके जी, नीचे ना ये कर हो दे। गया जी। ये सही है, बस सही ये है। तो हम ऐसे भी अंदाजे के मुताबिक लगा रहे हैं ना। हम्म, तो फॉर एग्जांपल दिस इज 62 डिग्री, तो 062 ऐसे ही होगा, नीचे तो हो नहीं सकता।
द बेरिंग ऑफ पर्सन सी फ्रॉम द पर्सन बी इज 275 डिग्री। तो जरा ये जरा देखें जरा 275 कहाँ पर आता है। सो फ्रॉम पर्सन बी, सो 180 हो गया बेटा, जी ठीक सर। है। और 180 प्लस 260 यहाँ तक होता है 70, यस और नो, यहाँ तक होता है 270। और यस सर। 270 मतलब कि ये वाला जो पर्सन है ये कुछ इस किस्म की लाइन पर होगा, यस और नो। जी सर। तो ये जहां पर ये दोनों लाइनें क्रॉस कर रही हैं, दैट पॉइंट इज योर सी। ओके, समझ आ गई बेटा। यस सर। तो ये आपका आसान भी कही है एक्यूरेसी के लिए कि यू कैन -360 -275। तो आपने करना ये होता है कि आप मेरी जरा ये शेडिंग देखें कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोटेक्टर रखना है, ठीक है। और जी सर। 360 -275 आप करेंगे तो कितना आता है बेटा, 85 आता है। तो आप ये यहाँ से यहाँ तक 85 डिग्री एंगल मेजर कर लो, तो मतलब नीचे वाला एंगल 275 ही है ना। तो आपने लाइन जी लगानी सर। है बिकॉज प्रोटेक्टर की लिमिटेशन है 180 डिग्रीज तक। समझ आ गई। यस सर। तो आप रिवर्स प्रोसेस से जाके आपको वो देखना होगा कि ये पॉइंट सी है किधर। समझ आई। ओके सर। चल चल जी, मैं नोट्स शेयर करता हूँ। कल इंशाल्लाह ताला बेरिंग्स के ऊपर हम लोग पास पेपर क्वेश्चन करेंगे। मारो अब बेटा, आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आप मुझे वॉइस नोट पे बताएं व्हाट्सएप के ऊपर कि आपको समझ आई है और क्या क्या समझ आई और क्या क्या समझ नहीं। मैं ये वर्कशीट भिजवा रहा हूँ। और सर मुझे समझ नहीं आ रही, तो इसलिए क्योंकि आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही बेटा कि आप क्या आप मुझे बता सकें आपको समझ क्या नहीं आ रही। सो आपने करना ये है कि आप अपना माइक जो है ना वो आपने कल फिक्स करना है, ठीक है। अभी आप मुझे व्हाट्सएप पे बताएं ये मैं चीज़ भिजवा आप लोगों को, ठीक है। और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है, तो ये लेक्चर आप रिपीट कर सकती हैं क्योंकि शुरू में आपकी डिस्कनेक्टिविटी हो गई थी, ठीक है। सो ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सो